Hello everyone, I welcome you all to my channel and today we are going to study chapter 9 idioms and proverbs. So, why do we use idioms? We use idioms and proverbs in our writing to make our language ornamental or decorative. Understood? We are using to make our language decorative. Next, what is an idiom? An idiom is a phrase that has a meaning of its own, but it cannot be understood from the meaning of its individual words. For example, to be fed up with. So, if you are saying to be fed up with, it means that you are tired and annoyed with something that has been happening for too long. मतलब कोई चीज़ इतनी बार होती रही है कि आप उससे एकदम परेशान हो गए हैं. To rub someone the wrong way, it means you are irritating someone. It's a kind of phrase and it's arrangement of some words which gives meaning. Understood? By the skin of your teeth means that you did something. It means that something was successful but only just barely. बड़ी मुश्किल से ही किसी चीज़ को कर पाना इसे कहते हैं by the skin of your teeth. Okay? Next, what is a proverb? Proverb is a kind of short popular saying that gives advice about how people should behave and it expresses a belief that is generally thought to be true. They are traditional method of passing the wisdom and experience of our ancestor. हिंदी में हम proverb को कहावत कहते हैं और जो हमारे ancestors रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो इन चीज़ों को यूज़ किया करते थे और ये बहुत ही विटी होती हैं, बहुत थॉटफुल होती हैं. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. नेक्स्ट इज दोज हु लिव्स इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, जिनके घर पत्थर के बने हों, जिनके घर शीशे के बने हों, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए. द सेकेंड इज अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन्स, मतलब समय रहने पर संभलने से बड़ी आफत टलती है. ठीक है, तो ये कहावतें होती थी जो हमारे एंसेस्टर्स या जो विजडम जो वाइज पीपल होते थे वो इस तरह की विजडम सेइंग कहते थे. ठीक है. Now the next, you should know that study of proverbs is called paremology. जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो उसको paremology कहते हैं. Like idioms, proverbs have a meaning that is greater than the meaning of the individual words put together, but in different than idioms. ठीक है, तो जो literal meaning होता है idiom का doesn't make sense, उसका कोई वो sense वो नहीं बनाता है. Idioms can be almost impossible to understand unless you learned or heard them before. अगर आपने इन शब्दों को नहीं सीखा है या नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से द कैट्स आउट ऑफ द बैग, इट मीन्स द सीक्रेट इज़ गिवन अवे. तो आप ये तभी समझ सकते हैं जब आपको ये पता है और इसकी मीनिंग पता है. ठीक है. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो आपको पता है कि रोज़ एक एप्पल खाने से बीमारियां दूर रहती हैं. एंड दिस प्रोवर्ब कम्स फ्रॉम एंशियंट रोमन्स, जिनका ये मानना था कि एप्पल में मैजिकल पावर होते हैं जो इलनेस को क्योर करते हैं. Do the I's and cross the T's means only handwritten documents were used. It is important for the clerk to write everything properly, especially letters like I and T, which could easily be confused. ठीक है. तो ये आपको इडियम्स और फ्रेजेस आप तभी प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं जब आपको उनकी मीनिंग पता हो. फॉर एग्जाम्पल, हियर आर सम पॉपुलर इडियम्स विद देयर मीनिंग्स एंड यूसेज. द फर्स्ट वन इज़ विद ओपन आर्म्स, का मतलब तहे दिल से स्वागत करना. विद अ वार्म वेलकम. व्हेन शक्ति रिटर्न टू हिज कंट्री ही वॉज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स. नेक्स्ट, won his laurels. It means acquired glory or distinction. Einstein first won his laurels in his country. Within an ace of, it means on the point of, defeated very neatly. Napoleon was within an ice of defeat, means on the point of, on the point of. Understood? Set one's face against means strong up, किसी चीज़ को स्ट्रांगली अपोज करना. एज अ रिलीजियस पर्सनैलिटी ही सेट हिज फेस अगेंस्ट सोशल इवल्स. नॉट वर्थ वन सॉल्ट मीन्स गुड फॉर नथिंग, जो कुछ नहीं के भी बराबर हो. लाइक ही इज़ वेरी लेजी, ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट मीन्स ही इज़ गुड फॉर नथिंग. टू मीट ट्रबल हाफ वे,
इट मीन्स टू वरी अबाउट ट्रबल बिफोर इट कम्स, मतलब परेशानी आने से पहले ही उसके लिए घबराना. रिलैक्स, इट इज़ सिली टू मीट ट्रबल हाफ वे. Burnt his fingers means got himself into trouble. Chintu burnt his fingers by interfering in his classmate dispute. मतलब कि जो क्लास की झगड़े थी उसमें उसने इंटरफेयर करके खुद ही अपने अपने आप को ट्रबल में डाल लिया. ठीक है. तो नेक्स्ट इज एट इशू मीन्स इन डिस्प्यूट. द पॉइंट एट इशू इज नॉट सो सीरियस. सो हियर एट इशू मीन्स इन डिस्प्यूट. फ्रॉम हैंड टू माउथ विदाउट एनी प्रोविजन फॉर फ्यूचर. For example, most families in Gandhi colony live from hand to mouth means they are living without any provision for future. In the nick of time means just at the right moment. Okay, the chief proctor came to the scene in the nick of time at the exact moment, just at the right moment. In the long run, for a long period, truth is sure to be rewarded in the long run. Hand glove. Hand glove means very close to someone. Shamim and Shankar are hand and glove with each other means they are very near and dear to each other. Put in mind, remind. The scenes put me in mind of a musing art and craft fair. Off and on का मतलब होता है occasionally. I keep busy, I visit him off and on. Not in voice means unable to sing well. Mahendra having a slight cough was not in voice means he was unable to sing well. Make one's mark means achieve something. At an early age, Kautilya made his mark as an extraordinary genius. Make up one's mind means decide. Okay, so if you want to say decide, you could you could use a idiom like make up one's mind. ठीक है. He made up his mind to be a doctor means he decided to be a doctor. Understood now? To have at one's fingers' end. It means to know thoroughly. Ramanujan had maths at his fingers' end means he knew it thoroughly. Hang together, consistent with each other. These two sentences do not hang together. Now, without reserve. Without reserve means fully. It means the judge accepted lawyer's statement without reserve means he just accepted lawyer's statement fully. Give himself airs means behaving arrogantly. Shatrughan had been given himself airs means Shatrughan had been behaving arrogantly. Understood? Make a pile means make a fortune. It means he has been making a pile, he has been making a fortune in this business. ठीक है. And making a fortune means making a luck. See eye to eye means agree completely. Yogendra will not see eye to eye with me. And if you are agree with someone, you could see that I will see eye to eye with him. ठीक है. Cut someone short, interrupt करना, interfere करना. While Lalit was speaking, his teacher cut him short means interrupt him. Cut someone short or cut him short. Take stock of means examine. After the function, the principal ordered the staff to take stock of whole program. Now, let's solve. Try out one. Circle the correct options to express the meaning of given idioms. To make one's mark means it means to achieve something. Option number A is correct. Next, off and on means occasionally. ठीक है. कभी कभी वाला हिसाब. He was received with open arms. Open arms means he was given a warm welcome. The cat is out of the bag means the secret is given away. To be fed up means to be annoyed with something. Understood? Next, to cut someone short means to interrupt. In a nutshell means briefly. If you are seeing someone eye to eye, it means you are agree completely. Next, some idioms and their meanings given below. Frame sentences using them. तो sentences तो आप खुद से बना लेंगे. I'm just giving you the meaning. Like carry on means to continue. Then egg on का मतलब होता है encourage करना. To encourage or to urge on. Give up का मतलब to stop trying.
put up with, to tolerate, to add fuel to fire, to give another cause for anger. To flog a dead horse, it means to waste one's energy. To grease the palm, to bribe. To keep one's finger crossed, it means to wait anxiously. A fair weather friend, it means a friend in prosperity only. In the nick of time, it means at the exact time. Now let's talk about the common proverbs and their explanation, and I'm giving you the Hindi meaning. Okay, a stitch in time save nines का मतलब हुआ कि समय पर जो भी समय पर रहते हुए समय पर रहने पे संभलना जो होता है वो बड़ी आफत को टाल देता है. अंडरस्टूड. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. जो वक्त पर काम आए बस वही दोस्त होता है. अ ट्रू फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड यू इन टाइम्स ऑफ नीड. एज यू सो शैल यू रीप. मतलब जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे. यू गेट वॉट यू डिज़र्व. जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वही मिलेगा. नेक्स्ट, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. इट मीन्स अ पर्सन हु कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डजेंट अक्वायर रिलेशंस और पोजेशंस. एक कहावत है हिंदी में, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, है ना, क्योंकि वो इधर उधर टहलने में उन्होंने कुछ भी एक्वायर नहीं किया. अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू नाइन इन द बुश. मतलब 9 नकद न 13 उधार. इसका मतलब हुआ इट्स बेटर टू कीप वॉट यू हैव रादर दैन लुक फॉर समथिंग एल्स. मतलब आपके हाथ में जो है उसी में खुश रहिए. जो बाकी जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके बियॉन्ड है, उसे पाने की कोशिश मत करिए. नेक्स्ट, अपीरियंसेस आर डिसेप्टिव. इसका मतलब हुआ कि हमें जो लोगों का अपीरियंसेस होता है वो छलावा होता है. मीन्स दिखावा छलावा होता है. अंडरस्टूड. यानी डोंट जज पीपल बाय देयर लुक्स. दे मे नॉट बी एज गुड एज दे अपीयर. और यू अनदर वर्ड यू कैन से, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. Now the next, an apple a day keeps the doctor away. आपको ये पता है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि रोमन्स में ऐसा बोला जाता है, रोमन्स ऐसा बोलते थे कि एप्पल में कुछ मैजिकल पावर्स होता है जो इलनेस को क्योर करता है. ठीक है. नाउ एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर. इसका मतलब अलगाव प्यार को गहरा करता है. मीन्स व्हेन यू सेपरेट फ्रॉम द पीपल यू लव और वी वैल्यू, वी स्टार्टेड वैल्यू them more. Understood. Now a cat has 9 lives. It means कि जो cat होती है वो बहुत ही sturdy animal होता है और it can survive many accident और injuries. A bad workman blames his tools. इसका मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा. Understood. मतलब कि वो अपनी ही, वो कहते हैं कि मैं नाच लेता बहुत अच्छे से लेकिन आपका आंगन ही टेढ़ा है. तो वो अपने अंदर कभी गलतियां नहीं निकालते हैं, वो लेम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं. अंडरस्टूड. अ पर्सन हु इज़ एट फॉल्ट विल ट्राई मेक लेम एक्सक्यूजेस. नाउ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हों. नाउ बेटर लेट दैन नेवर. मतलब देर आए दुरुस्त आए. देर से आइए पर दुरुस्त आइए. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू अ थिंग इवन इफ़ यू आर लेटर दैन नॉट, इवन इफ़ यू आर लेट दैन नॉट डूइंग इट एट ऑल. ना करने से अच्छा है कि उसको देर में करिए और दुरुस्त करिए. ठीक है. बेगर्स कांट बी चूजर्स. मीन्स दान के बछिए के दांत नहीं गिने जाते. इट मीन्स अ नीडी पर्सन हैज़ टू एक्सेप्ट वट एवर इज़ ऑफर्ड विदाउट कंप्लेनिंग. नेक्स्ट, ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर. इसका मतलब हुआ कि पहले अपना बाद में कोई और. अंडरस्टूड. मीन्स फैमिली टाइज आर ऑलवेज स्ट्रोंगर दैन अदर रिलेशनशिप. नाउ बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. एक ही थाली के चट्टे बट्टे. मीन्स पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट प्रिफर टू स्टे टुगेदर. नाउ द नेक्स्ट, beware of Greeks bearing gifts. It means beware of your enemy even if they show goodwill. अगर आपके दोस्त Now the next is early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Means समय पर सोना और समय पर उठना किसी भी इंसान को बुद्धिमान, स्वस्थ और धनवान बनाता है. It means a person who sleeps and gets up early is benefited in every way.
The next one, every cloud has a silver lining. It means there is a hope in every situation. हर काली रात के बाद उजली सुबह होती है. Understood? Now the next is empty vessels make much noise. It means थोथा चना बाजे घना. People who are foolish talk the most. है ना, जो ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं. God helps those who help themselves means जो खुद की मदद करता है भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करते हैं. सक्सेस कम टू दोज हु वर्क फॉर इट. अगर आपको लगता है कि बैठे बैठे आपके पास सफलता आ जाएगी तो वो कभी नहीं होगी. ठीक है. नाउ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है. वन शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एज इट कीप्स यू आउट ऑफ ट्रबल. नेक्स्ट लुक बिफोर यू लीप. ठीक है, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लें. थिंक बिफोर यू डू समथिंग. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स लाइफ इज़ नेवर ईजी फॉर एनी बडी. जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है. नेक्स्ट, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज. मतलब पैसे जो हैं वो पेड़ पर नहीं उगते हैं, इसलिए हमें पैसे को वैल्यू करना चाहिए एज इट इज़ नॉट ईजली अर्नड. वंस बिटन ट्वाइस शाय मीन्स दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक कर पीता है. Understood? Because of a bad experience, we tend to avoid similar people or situation which can lead to trouble. नेक्स्ट, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स. जिनके घर पत्थर के बने हो जिनके घर शीशे के बने हो उन्हें दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए. इट मीन्स पीपल हु आर एट फॉल्ट शुड नॉट पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. इलाज से बेहतर रोकथाम है. तो इट्स बेटर टू बी केयरफुल एंड प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग रादर दैन रेक्टिफाइंग द डेंजर लेटर. डैमेज लेटर. राइट. प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच मीन्स जैसा कहें वैसा करें. कथनी और करनी में आपके डिफरेंस नहीं होना चाहिए. फॉलो द एडवाइस दैट यू गिव टू अदर्स. नेक्स्ट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे मीन्स बड़े काम एक दिन में नहीं होते हैं. रोम एक दिन में नहीं बना था. एवरी टास्क टेक टाइम्स टू गेट अकॉम्प्लिश्ड एंड वन शुड नॉट एक्सपेक्ट overnight results. Understood? Next, spare the rod and spoil the child. It means बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बच्चे खराब हो जाते हैं. It means if a child is not punished for his mistake, he will never learn. Next, time heals all wounds. समय सभी घाव को भर देता है. The impact of bad memory diminishes with time. The early bad catches the worm. It means पहले आइए पहले पाइए. The person who comes first gets the best option. Two blacks don't make a white means you cannot justify your mistake because somebody else has done the same. किसी ने आपके जैसी गलती करी है तो वो दो गलतियाँ मिल करके सही नहीं हो जाएंगी. Understand? Too many cooks spoil the broth. It means जहाँ मिले 5 माली वहाँ बाग सदा खाली. इसका मतलब हुआ कि when many people are involved in a task, it cannot be done properly. Next, time is money. सबको पता है कि समय precious है, समय ही धन है. We must not waste time as it is most valuable. Next, when the cat is away, the mice will play. It means बड़े मियाँ घर नहीं हमें किसी का डर नहीं. People take advantage when the person in authority is not around. Next, when in Rome, do as the Romans do. जैसा देश वैसा भेष. Behave in the way people around you do. अब ऐसा नहीं है कि आपके आसपास के लोग बहुत ट्रेडिशनल हैं तो आप वहाँ बहुत मॉडर्न बन के घूम रहे हैं और जहाँ मॉडर्न है वहाँ आप ट्रेडिशनल बन के घूम रहे हैं. इसका मतलब हुआ जैसा देश वैसा भेष. Where there is will, there is a way. जहाँ चाह वहीं राह. If a person is determined to do something, he or she will find a way to accomplish it. Understood? Now you scratch my back, I will scratch your. एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो. If you help me, I will help you in return. Next, यू आर वॉट यू ईट. जो आप खाते हैं वैसे हो जाते हैं. जैसा आप सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं. मीन्स द काइंड ऑफ फूड दैट यू चूज़ टू ईट अफेक्ट्स योर वेल बींग. नाउ लेट्स डू ट्राई आउट 3. इसमें क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. मतलब सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है. ऑल दैट अपीयर्स ब्यूटिफुल और टेम्पटिंग मे नॉट नेसेसरली बी गुड फॉर अस.
तो इसमें आपको क्या लिखना है, नाउ थिंक ऑफ एन इंस्टेंस जो आपकी लाइफ में हुआ है, यू बॉट समथिंग, यू वर टेम्पटेड और जब व्हेन इट टर्न्ड आउट टू बी वेस्ट यूजफुल, जब आपको मिली तो इट वाज लाइक अ यूजफुल। आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, तो वी विल डू दिस थिंग इन क्लासरूम। नाउ ट्राई आउट 4, fill in the blank each sentence with a suitable word to complete the proverb. So two wrong do not make right, we will fill here do not. Next, ignorance is bliss, किसी चीज़ को ना जानना ही क्या है, आनंद है। आपने वो जान लिया, आनंद खत्म। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, है ना, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इफ़ यू वॉन्ट अ फ्रेंड बी अ फ्रेंड, अगर आपको दोस्त चाहिए तो सबसे पहले आपको ही दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आई एम जस्ट राइटिंग अगेन, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब देर से मिला हुआ न्याय ना मिलने के ही बराबर था। नॉलेज इज पावर, ज्ञान में ही शक्ति है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जो जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो एक जैसा ही सोचते हैं। अ जर्नी ऑफ 1,000 miles स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, हज़ारों मील का सफ़र एक कदम से ही कहीं शुरू होता है। अ स्मूथ सी नेवर मेक स्किलफुल मैरिनर, चुनौतियाँ ही मनुष्य को साहसी बनाती हैं। Try out 5. Write the meanings of the given proverbs in your own words. Beware of Greek bearing gifts. ये आपके बुक में ही दिया गया है. You can write from there. The meaning of this word I am telling you orally. Don't trust enemies who bring you present. Understood? Every cloud has a silver lining. मतलब कि हर काली रात के बाद सुबह होती है, मीन्स इवन एवरी बैड सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव और होपफुल साइड। एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, मीन्स किसी की अनुपस्थिति जो है उसके प्यार को और बढ़ा देता है, अलगाव प्यार को गहरा करता है। इट मीन्स व्हेन पीपल वी लव और नॉट विद अस, with our side we love them even more. Two blacks don't make a white means your faults are not excused by the faults of somebody else. Too many cooks spoil the broth. Spoil the broth, not broth. Okay. Too many cooks spoil the broth. It means जहाँ मिले 5 माली वहाँ बाग सदा खाली. Okay. Too many people are involved in a task or activity and result is not good. Understood? Practice what you preach. जैसा आप कहिए वैसा करिए. कथनी करनी सेम होना चाहिए. It means behave in the way that you encourage other people to behave. Understood? Now show and tell. Gather in groups of 3 or 4 students and enact a short skit based on the proverb of your choice. So here some proverbs have been given and we will do this activity in the classroom. Thank you so much for watching. Bye everyone.